Can you hear? Sorry, ये इंटरनेट का चक्कर है. किमपि सततबोधं केवलानन्दरूपं निरुपममतिवेलं नित्यमुक्तं निरीहं निरवधिगगनाभं निष्कलं निर्विकल्पं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ. কি যেন একটা আনন্দ বোধ, একটা সূক্ষ্ম আমিত্ব বোধ সবসময় তার ঢেউ চলেছে. একটা বিখ্যাত গান composed by Swami Saradanandaji. Then when Samadhi is writing Bohe Matro Ami Ami, there is only the ripples of man, I. It is the condition of a Samadhi person. निर्विकल्पम विकल्प शून्य पूर्ण ब्रह्म विद्वान व्यक्ति समाधो हृदय कलयति. समाधि हृदय में यही उपलब्धि करते हैं. During samadhi, the wise man realizes in his heart eternal knowledge which is of the nature of pure bliss. We cannot explain it because it is indescribable. Shruti says there is nothing like it. न तत्र प्रतिमा अस्ति. Anywhere in the range of our experience today. Therefore, it is incomparable. It transcends all limits. It is a state which is ever free. Never has it ever been limited. It is a state where there are no activities, no physical activities, no mental activities, no intellectual activities. Such a state is called niriham. It is a state unconditioned by place, time, or other things. It is a limitless state like space. A factor which is unconditioned by time, place, or objects can only be compared with space. Therefore, Bhagavan Shankaracharya ji uses the simile like space, Gaganabha, that which has no parts, Nishkalam, Niravayam. Not only has it no limbs, but it also has no thought disturbances. In Samadhi, a wise man comes to experience this state of complete and full reality. समाधि में साधक क्या अनुभव कर रहा है, इस श्लोक में भगवान शंकराचार्य भी वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं. अगर कोई व्यक्ति कोई जगह पर नहीं गया तो उसके बारे में इतना डिटेल्स नहीं बोल सकते. जो व्यक्ति कभी मिठाई नहीं खाया, जिनके पास मिठास की कोई एहसास ही नहीं है, वो व्यक्ति उसके बारे में बोल नहीं सकता. और इतना पुंखानुपुंख रूप में तो हमारे आचार्य श्री भगवान शंकराचार्य जी used to have samadhi.
on and often, then only he can proclaim the state of samadhi in such a beautiful manner. And he is inspiring us to gain that state. He's approaching us, he's appealing to us, he's inspiring us, he's insisting us that unless and until you attain this state of mind, dukkham will be there in your life. You can't understand what the real ananda is. How you can be a nice srota, listener, श्रवणकर्ता कैसे आप अच्छा बन सकते हैं? When you try to practice the same thing what Acharya has told, starting from the gaining qualification for that, Vivek, Vairagya, Samadama, Uparama, everything, all the qualities I am having or not, it matters. Clear? Then it is possible. It is not that one Acharya has gained it and I have no right. So it means each and every spiritual being or practitioner has the same right what Bhagavan Shankaracharya ji got. Like Buddhatva, भगवान बुद्ध किसी का नाम नहीं होता है, जिनका बोध हुआ है वही बुद्ध, और बोध में सबका अधिकार है. Got my point? So भगवान is telling जी क्या अनुभव होता है ये मैं तुमको शेयर कर रहा हूं. इट्स लाइक द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड रियल. इस शब्द को आप नेगेटिव तरीके से मत लीजिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इज सच अ मीडियम बाय व्हिच वी कैन नो अबाउट द प्रोडक्ट. Unless and until it gets advertised, how should I know what is the product? আমরা বলি না যাও একটা এইটা বেরিয়েছে, এইটা কিনে নিয়ে এসো. এতদিন ধরে এইটা ভাবছিলাম যে এটা কেন বেরোচ্ছে. बोध means ज्ञान या चैतन्य. सतत बोधम means सर्वदा ज्ञान रूप में है, always conscious. We are not conscious. We are not conscious about our lifestyle, about what we are thinking, about what we are telling. जब भी मन में जो आता है बोल देता है, विचार भी नहीं करते किसको बोल रहा हूं. ऐसा भी व्यक्ति मैंने देखा कि आचार्य कुछ अच्छाई के लिए उनको बोला है, बाद में वो टाइम मिल के आचार्य को टोक रहा है उसी शब्द से. लगता है मैं कुछ बड़ा हो गया. मैंने देखा ये, विश्वास कीजिए, हमारे सांदीपनी में भी देखा, कलकत्ता में भी देखा, देख भी रहा. अगर यही है करीब आने का प्रॉब्लम, suppose you tell something else for the betterment. Now with every day she tries to meet up her own anger, own grievance. बात हुआ था उनके ऊपर कैसे काम करेगा, लेकिन वो इट्स लाइक अ संसार, यू नो. संसार में क्या होता है, हस्बैंड कुछ बोल दिया और वाइफ मौका ढूंढ रहा है कब उसको वापस करूं इस बात. इट्स वाइस वर्सा. और वो अपना संसार ये आध्यात्मिक संपर्क में भी ला लिया. You have to know it's a different path. That is why this is the only place जहां पर
शिष्य वृद्ध होता है और गुरु युवा होता है। How we can mix with it like our daily grihasthi samsara. So सतत बोधम नित्य चैतन्य स्वरूप एक अनुभव होता है। एवरी टाइम देयर इज अ वेव ऑफ ज्ञानम। ये भाषा में प्रकाश करना संभव नहीं, इसीलिए बोल रहा है किमपि, मतलब की जेनो एक्टा, as if though I have know the particular word is not possible to express, because word, what is word? Word is the geometric dimension of language to express something else. Like zero आप ऐसे बोल नहीं सकता. What is zero? Zero is the geometric dimension of infinity. Have you ever thought? Zero means बुद्ध वाला शून्य नहीं. बुद्ध मीन्स शिव वाला पूर्ण. कैसे हो सकता है ये? ना आप कभी कुछ सृष्टि देखा जो शून्य में नहीं हुआ? हर सृष्टि तो शून्य में हो रहा है, तो ये शून्य कैसे पूर्ण ना होकर रहेगा? ये आसमां, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये कहां से आया? शून्य से तो आया ना, जिसको हम स्पेस बोलते हैं। लेकिन ये शून्य मतलब नापन नहीं, खालीपन नहीं। ये शून्य मतलब पूर्ण, जहां से आया और जहां विलीन हो जाता है, क्योंकि यही पूर्ण है। ये समुद्र में ही फोम उठा, फोम पिघल गया, लहर उठा, लहर पिघल गया। ये पृथ्वी हुआ, पृथ्वी पिघल गया, मतलब विलीन हो गया। सूरज हुआ, सूरज एक दिन विलीन हो जाएगा। यही शिव है, यही पूर्ण है। क्लियर? केवल आनंद रूपम, दुख की लेश नहीं है, बिकॉज दुख एक विकार है, एक पर्सनल विकार। सबके अंदर आता है, मेरा भी आता है कुछ, that it is only with you. It comes for everyone else. लेकिन दुख कितना स्पर्श कर रहा है और कितना समय तक रह रहा है, ये सबसे बड़ा बात है। इस दुनिया में ऐसे कोई गृह नहीं जहां पर मृत्यु प्रवेश नहीं किया, जो जीवन में दुख नहीं मिला किसी को। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं, कोई अवस्था नहीं, कोई परिवार नहीं। लेकिन दिस इज द पावर ऑफ अ स्पिरिचुअल एस्पिरेंट। जो लोग आध्यात्मिकता को अभ्यास करते हैं, प्रेम करते हैं इस विषय को, वेदांत को जो प्रेम करते हैं और प्रेम पूर्वक जो समझना चाहते हैं वेदांत की सत्य को, वेदांत की सत्य नहीं, सत्य को, जिनके बारे में वेदांत में चर्चा हुआ है, उनके पास भी दुख आएगा। लेकिन ये कैसे है? जैसे रेनकोट पहनकर आप बारिश में खड़ा हो जाओ, देयर विल बी रेन, बट नॉट द ड्रॉप ऑफ रेन कैन ड्रेंच यू। समाधिस्थ साधक इस अवस्था को अनुभव करते हैं। इनका कोई उपमा नहीं है, तुलना नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। बेला का मतलब क्या है?
बेला मतलब तटभूमि, किनारा। अतिवेला मीन्स जिनका सीमा नहीं है। जो असीम है, जो इटर्नल है, उसका बंधन कैसे रहेगा? कौन बांधेगा उसको? आसमान को ही बांध के दिखाइए ना। आसमान भी तो प्रोडक्ट ऑफ ब्रह्मन। वायु को भी बांध के देखिए ना, फिर भी वायु को आप बांध सकते, लेकिन आसमान को कैसे बांध? जो असीम है, जो सर्वव्यापी है, उनका चलना फिरना तो संभव नहीं है। वही जो उदाहरण जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं वो और एक बार बोल रहा हूं। ये पानी के अंदर लोहे को डाल दो, पानी के अंदर फोम भी डाल दो, फोम पिघल जाते हैं, बिकॉज देयर इज स्पेस। लोहे का कुछ नहीं होता क्योंकि उधर स्पेस ही नहीं है। जो एकदम घन है, ठस ठसा ठस ठस है, उसमें चलन कहां से होगा? और इसको इसको समझाने के लिए मंत्र क्या है? तद्दूरे तद्वंतिके, तद उ अंतिके, तद एजति तन्ना एजति। ईशावासी उपनिषद। ये सबसे दूर में है, सबसे दूर, अंत में, और सबसे निकट मीन जहां से चालू होता है। सो दैट इज मीन इट इज सर्वव्यापी। इसमें चलन रूपी कोई भी क्रिया भी संभव नहीं। निष्कलम, कला मीन्स खंड, जिनका कोई खंड नहीं होता है। निष्कलम, निष्कलम कम, आकाश जैसे सबके अंदर विराजमान। ये जो टेबल चेयर है, इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा गैप है। गैप मीन्स स्पेस। हमारे शरीर के अंदर भी वही स्पेस है। समाधि में हृदय की अंदर का पूर्ण ब्रह्म को अनुभव करते हैं समाधि करता। जो समाधि लगाते हैं, जो विद्वान है, विद्वान मतलब जो बहुत किताब पढ़े हुए हैं, कठिन कठिन बहुत कुछ लिखता है, एवरी टाइम वांट्स टू शो हु एम आई। देखो मेरा अहंकार कितना मोटा है, कितना कुछ मैंने, इतना इतना मैं ये पढ़ा, मैं ये पढ़ा, मैं। और सिर्फ मैं में खंत नहीं, मेरा बेटा बेटी रिलेटिव, मेरा भाई का लड़का का, फूफा का, चाची का, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर। इट्स ओनली अहंकार रिलेटेड। ये विद्वान नहीं। वही विद्वान के बारे में इधर बताया गया है, सा विद्या या विमुक्त है। जो विद्या खुद को मुक्त करता है और दूसरे को भी मुक्त बनाते हैं। हाउ इज इट? न जिनके पास सबके लिए प्रेम है, और प्रेम भी है, श्रद्धा भी है। ही नोज हाउ टू रेस्पेक्ट अदर्स। सिर्फ अपना परिवार के, अपना मेड जो मैंने चुना, only they are good. If it is chosen by the other people, they are not good. और उसमें मेरा बहुत अहंकार है। सबके लिए समान प्रेम, समान भाव, वही व्यक्ति है। शास्त्र पढ़ा हुआ पंडित नहीं, जिनका ये विद्या लाभ हुआ है, ज्ञान लाभ हुआ है, उनका हर पल समाधि होता है। उनके हृदय में आनंद के सिवा दूसरे भावना की अवस्था की जगह नहीं। And it is possible for you to. Hari Om Tat Sat.